Economic system. What is an economic system? An economic system is a mechanism which deals with the production, distribution, consumption of goods and services in a particular society and comprises of people, institutions, and their relationships. It addresses the problem of allocation of or scarcity of resources. बेसिक जो हमारा प्रॉब्लम है ये इकोनॉमिक्स है क्या इकोनॉमिक्स इज अबाउट द that the resources are always limited, resources are scarce, wants and needs are unlimited, and the economics is how to allocate these scarce resources to get the maximum or to fulfill the maximum needs and wants of a society. So it is about the scarcity of resources and unlimited. So it is a basic economic problem. इस basic economic problem को कि there are unlimited needs and wants and scarce resources, how we should allocate these resources. There are different economic systems. Today we will study about these economic systems. There are the three types of economic system: capitalist economy, socialist economy, and mixed economy. Mixed economy, which is the combination of the first two, and capitalist and socialist economies are the two basic economic systems. A capitalist economy is an economic system in which the production and the distribution of commodities take place through the mechanism of free market. So it is also called market economy or the free trade economy. Feature of the capitalist economy: right to private property, profit motive, freedom of choice, market forces, and minimal role of the government. To address the problem of scarcity, we have three basic questions are the economic questions. व्हाट टू प्रोड्यूस कि अगर आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आपने डिसाइड करना है कि आप सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो आपने क्या प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट है आपका हाउ टू प्रोड्यूस कि आपने जो प्रोड्यूस करना है उसके लिए आपने किस किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है या आपने लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है, कैपिटल इंटेंसिव। एंड थर्ड इज हु गेट्स व्हाट टू इज प्रोड्यूस, जो कुछ आप प्रोड्यूस करते हैं उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। इन थ्री बेसिक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें एक इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए होता है। An economic system may involve production, allocation of economic inputs, distribution of economic output. So, there are the three types of the basic economic systems which we have. First is called planned system. It is also, इसकी example क्या है, socialism and communism. Second is free market system, which is capitalism. And third is mixed economies, a combination of socialism and capitalism. प्लान सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट का रोल मैक्सिमम होगा उसे हम प्लान सिस्टम कहेंगे, जिसमें सिर्फ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगी उसको हम फ्री मार्केट सिस्टम कहेंगे। So in the advantage of capitalism are increase in productivity, increase in standard of the living, flexible system, and minimum interference of the government, and efficient use of resources, growth of entrepreneurs, and technological improvements. डिसएडवांटेज इसमें क्या है कि एक तो इसमें इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा होती है कि अगर जो लोग वेल्दी हैं, ये जैसे आप समझते हैं बड़े बड़े इंटरप्राइज होते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती हैं, कि जो एक दफ़ा जिसके पास पैसा या दौलत आ गया उसकी तो दौलत इंक्रीज होती चली जाती है, जबकि वो पॉवर्टी जो उनकी है, ये पोअर लोग जो उनसे वो उनकी पॉवर्टी बढ़ती चली जाती है और इसके पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मिनिमम। कि आपकी अगर सोशलिज्म सिस्टम होगा तो वो इसको और तरह से डील करेगा, लेकिन जो कैपिटलिज्म सिस्टम है वो इस तरह की अनदेखी आफात या और अनदेखी अचानक आने वाली चेंजेस की वजह से इतना स्टेबल नहीं भी होता। देयर मे बी रिसेशन इन द इकोनॉमी। सेकंड इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सोशल वेलफेयर कि जब आप ओवरऑल सोसाइटी के लिए गुड प्रोड्यूस करते हैं तो सोशल वेलफेयर इंक्रीज करती है। इसमें मोनोपोली की परमिशन नहीं होती और हर शख्स को बेसिक नीड्स उसकी ज़रूर प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड एक्सट्रीम इनइक्वालिटी नहीं होती क्योंकि जो आपका प्रॉफिट मोटिव तो होता नहीं,
जो प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में सबके लिए प्रोड्यूस हो रहा है और इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, सो देयर इज नो एक्सट्रीम इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी। लेकिन जो ये सारा सिस्टम गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जो उनका रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, इट मे लीड टू करप्शन। दूसरी बात, इसमें कोई फ्रीडम नहीं है कि आप अपनी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। थर्ड इज एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, जब आपको प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है तो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का मोटिव नहीं होता। एंड एब्सेंस ऑफ कंपटीशन की डिफरेंट एंटरप्रेन्योर होते हैं बिजनेस में, जब उनमें कंपटीशन होता है तो वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे खर्च किए जाते हैं और रोज़ नई से नई जो टेक्नोलॉजी है उसे अडॉप्ट किया जाता है। जब कंपटीशन नहीं होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होती जितनी ये कैपिटलिज्म में इंक्रीज होती है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इट इज an economic system that incorporates aspects of more than one economic system. This usually means an economy that contains both private and state-owned enterprises or that combine elements of capitalism and socialism. Most of the countries in the world are fall in this category कि there is mixed economy, कि कुछ इदारे जो होते हैं वो अंडर गवर्नमेंट एंड कुछ जो होते हैं आपको मतलब प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं। पाकिस्तान में भी यही सिस्टम है, लेकिन कुछ इदारे जो होते हैं स्पेशली खासतौर पर डिफेंस के लिए, जैसे आपको गवर्नमेंट की जरूरत है, बैंकिंग सिस्टम अंडर गवर्नमेंट है, और हॉस्पिटलाइजेशन प्राइवेट भी हैं तो गवर्नमेंट के भी हैं, स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। तो यूजुअली जो होते हैं जो मिक्स इकोनॉमी है वो एग्जिस्ट करती है द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में। फिर इसमें कुछ सोशलिज्म इफेक्ट होते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज जो होती हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन साथ ही प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, प्राइवेट ओनरशिप है, प्रॉफिट मोटिव है, ये कैपिटलिज्म सिस्टम की जो क्वालिटीज है ये भी साथ साथ चलती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि रिसोर्सेज आर owned by both government and the private individuals. Private and public sector exist side by side. All basic and heavy industries and other strategic sectors of an economy जैसे banking, transport, energy are controlled by the government. Agriculture and consumer goods and other industries that are controlled by the private sector. इसमें क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, it will be decided by the businesses. Who decided how to produce goods and services? It is also decided by the businesses, but the government regulates certain industries. फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन जो होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली होगी, बिजनेसमैन खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन उसमें अगर पोल्यूशन का इशू आ रहा है तो गवर्नमेंट विल हैव टू मेक सम लॉ एंड विल हैव टू टैकल इट। हु आर द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर, के गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए प्रोड्यूस की जाती है, फॉर द कंज्यूमर। अब इन एक्सट्रीम जो है कैपिटलिज्म, उसमें ये है कि ज़ाहिर है कि जो खरीद सकता है सिर्फ वही खरीदेगा। इन एक्सट्रीम सोशलिज्म ये है कि रिगार्डलेस आपकी परचेजिंग पावर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस फॉर ऑल। इन मिक्स्ड इकोनॉमी में भी गुड्स एंड सर्विसेज यूजुअली फॉर द कंज्यूमर एंड फॉर दोज हु अफोर्ड दोज गुड्स एंड सर्विसेज। एडवांटेज या फायदे क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी के, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है सोरेनिटी मीन की आज़ादी होगी टू चूज, फ्रीडम है what to produce and what to consume, but production and consumption of harmful goods and services may be stopped by the government। कुछ चीज़ों की फॉर एग्जांपल अब जैसे सिगरेट है, इस पे अगर कंप्लीट बैन नहीं दिया, जिसके टैक्स इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। In the mixed economy, it is helpful in increasing national production in the country. Both public and private sector work hard to bring about more production। तो दोनों फैक्टर कुछ मतलब इसका फायदा ये है कि वैसे तो प्राइवेट सेक्टर या फॉर एग्जांपल जिसे कहते हैं कैपिटलिज्म में ओवरऑल प्रोडक्शन विल इंक्रीज, बट कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होती हैं कि सो इट इज एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे आप ये कह लें कि नेशनल डिफेंस है, ये प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसके लिए आपको गवर्नमेंट की जरूरत है। ये एफिशिएंटली हो भी तभी सकता है कि इसमें अंडर द गवर्नमेंट। तो आपकी मिक्स्ड इकानमी है तो वो गुड्स जो प्राइवेट सेक्टर मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकता है वो प्राइवेट सेक्टर को दे लें, और वो गुड्स स्पेशली जो पब्लिक गुड्स है जैसे पार्क्स हैं, वो प्राइवेट सेक्टर जो होता है लिमिटेड प्रोड्यूस करेगा, अगर करेगा भी तो उसकी फीस ज़्यादा होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल चली जाती हैं। तो मिक्स इकोनॉमी में ये है कि इट इंक्रीज द नेशनल प्रोडक्शन जॉइंटली।
Next, a mixed economy may have less income inequality due to the role played by the गवर्नमेंट कि मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट का चूंकि रोल होता है तो गवर्नमेंट इनकम इनइक्वालिटी को डिक्रीज करने के लिए काम कर सकती है एंड कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट मिक्स्ड इकोनॉमी के डिसएडवांटेज क्या है कि अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट एंटरप्राइज हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसमें आप एग्जांपल देखते हैं जैसे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इधर फैसलाबाद में हर रोज बैनर लगे अपने फलां टैक्स कम किया जाए फलां टैक्स बढ़ाया जाए फलां चीज़ की इम्पोर्ट बंद की जाए फलां चीज़ की एक्सपोर्ट जो होती है उस पर हमें रिलीफ दिया जाए तो अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी जो होता है जो बिजनेस सेक्टर या जो प्राइवेट एंटरप्राइज होता है जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से वो ये समझा जाता है कि इतना फ्लोरिश नहीं कर पाते जितना अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो तो दे विल फ्लोरिश Next, since welfare of society is important in a mixed economy, it leads to lower than optimum use of the resources because government mobilize the resources toward the production of those goods and the services which are beneficial for the society as a whole, rather than producing those goods and services which in economic terms are more beneficial for the economy. इसमें रिसोर्स की एलोकेशन मोस्ट एफिशिएंट नहीं होती क्योंकि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो कि ओवरऑल इतनी बेनिफिशियल नहीं होती लेकिन उनकी प्रोडक्शन ज़रूरी अगर समझी जाती है तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को उस चीज़ों की प्रोडक्शन की तरफ लगा देगी तो अगर एक प्योर इकोनॉमिक व्यू पॉइंट देखे जाए तो उसको एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम नहीं कहते द फाउंडेशन ऑफ द मिक्स इकोनॉमी वर लेड इन इंडिया विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 और पाकिस्तान में तकरीबन यही पॉलिसी है जो कि शुरू से चल रही है Here it is a comparison of different economic systems. For example, capitalism में क्या है प्राइवेट ओनरशिप है सोशलिज्म में क्या है स्टेट ओनरशिप है और मिक्स इकोनॉमी में दोनों है प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर है कैपिटलिज्म में प्री डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर है सोशलिज्म में और को एग्जिस्टेंस है मिक्स इकोनॉमी में डिसाइसिव रोल क्या है कि क्या प्रोड्यूस होगा कैपिटलिज्म में डिसाइसिव रोल जो है मार्केट के सोशलिज्म में डिसाइसिव रोल ऑफ प्लानिंग जो होता है वो सेंट्रल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट के लेकिन डिसाइसिव रोल ऑफ मार्केट एंड सपोर्टिव रोल ऑफ प्लानिंग है दोनों में बेसिकली मार्केट डिसाइड करेगी मिक्स इकोनॉमी में कि क्या प्रोड्यूस करना है लेकिन गवर्नमेंट का ये प्लानिंग अथॉरिटी का सपोर्टिव रोल होगा कि उसमें कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन कम या ज़्यादा या बैन की जा सकती है प्रॉफिट इंड्यूस्ड बिजनेस कि आप बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है और socialism में production guided by social benefits, while in mixed economy profit induced private business. Capitalism में exploitation of labor है, but in socialism there is no exploitation of labor, and in mixed economy production in state sector guided by the social benefits. In capitalism there is restrictive role of the government, and in socialism there is dominant role of the government and the intervention of the role of the state. It is the world map showing communist states. Communist is the extreme form of the socialism where there is no freedom for anyone. It is according to the color. In most of the countries, there are the mixed economies